सो टुडे बिकॉज गुप्ता जी ने ये बहुत ही अच्छा एक ध्यान का मेडिटेशन की बात चलाई है, तो चलिए आज हम मेडिटेशन की बात करेंगे। और मेडिटेशन की बात करने से पहले हम ये समझेंगे कि मेडिटेशन तक, उस लेवल तक पहुंचना कैसे है। क्योंकि हमारे में से ऐसे कई जन होंगे, जैसे आप यहाँ पर इतने सारे जन हो, अगर मैं आपको सबको पूछूंगी कि क्या आप मेडिटेशन रोज करते हैं या क्या आप मेडिटेशन कर पाते हैं, तो ऐसे कई जन हमेशा मुझे कहते हैं कि यार हम मेडिटेशन ही नहीं कर पाते, हमारा ध्यान भटक जाता है। आई कांट डू मेडिटेशन, आई बिकम वेरी रेस्टलेस, देयर आर टू मेनी थॉट्स विच कीप कमिंग इन। How many of us face this? You can put up a thumbs up or you can put up something in the chat if you like. Yeah. So ज्योति गुप्ता जी, yes. तो ऐसी कितनी सारी चीजें हमारे दिमाग में आती रहती है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये बता दूं कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक हमारे दिमाग में थॉट्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो अगर हम ये सोचेंगे कि ध्यान में जाने से पहले या ध्यान में जाते ही आपका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाने वाला है और वहां पर एकदम ऐसे सफेद चित्र या सफेद प्लेन हो जाएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? No. जो चीजें हमारे दिमाग में उस समय चल रही होती है, जो चीजें हमें उस समय इफेक्ट कर रही होती है, हमारी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है, वो चीजें आपके माइंड में, आपके थॉट्स में रहेंगे जब आप ध्यान करोगे। तो मैं इसलिए कहती हूँ क्यों ध्यान करना चाहिए, ताकि जो चीजें आपके लिए उस समय सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको शायद समझ में न आए, लेकिन जब आप ध्यान करते हैं तो आपको समझ में आ जाती है। सो व्हेन वी आर मेडिटेटिंग, there are a lot of things in the day that we all do. Okay, there are a lot of multiple things that you will plan. We call ourselves multitaskers. There are a lot of multitasking that you will do. Now what happens is, some things we neglect, some things we forget, some things we pay attention to, some things we procrastinate कि अच्छा बाद में कर लेंगे। जब हम ध्यान करते हैं, when we meditate, at that time all these things, whether what we have given importance to, what we have forgotten, what we are not doing, what we are doing too much, all of it comes. And that is why when you do your meditation and when you finish it, when you complete it, after that I tell people, make sure you write what came to you, because that time suddenly you will realize, oh my God, you will feel, array, why am I feeling like this? There is no need for this. You know, so many things you're feeling bad about, you may just start crying in meditation. So many things that might have happened so nice, you might just start smiling while meditating. So meditation is extremely important to help you to come back to your present. Okay, so meditation is important for all of us because it helps us to come back into our present moment. As simple as that. It brings us back into our present moment. And Baki, we don't have to pay so much attention unless you are a proper yogic practitioner. So if you are a yogic practitioner, there are a lot of things that you will do on a regular basis before you go into dhyana, before you go into meditation. And what are those steps? Can you tell me what are those steps? What do you think would be the steps that you have to go? Sitting still in one posture, Okay. relaxed. I think यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार
then ध्यान. Can you repeat that? I think yam, niyam, pranayam, pratyahar, then comes Pranayam, pratyahar, pratyahar. then dhyan, I think. Okay, dhyana, Samadhi next to it. samadhi. Something Something is before missing. pranayam. Yam, niyam. प्राणायाम के पहले asana. Asana, yes. Okay, now yam, niyam, asana, प्राणायाम. उसके बाद प्रत्याहार के बाद समाधि. ध्यान के पहले प्रत्याहार. Sorry, I don't remember much. धारणा. Dharana, yeah. धारण. Yeah. Okay, यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. The 8 limbs of yoga. लेकिन आप अगर इसे और थोड़ा आसान बनाना चाहते हैं, थोड़ा, ये 8 limbs of yoga, इसको हम हल्का सा अगर ये 2 तरह के limbs होते हैं योग में. उसमें एक में 7 होते हैं, एक में 8 होते हैं. इतना ध्यान रखिए, ठीक है. एक पतंजलि से आया है और दूसरा योग से आया है जिसमें 7 होते हैं. तो उसमें यम और नियम के बदले षटकर्म होता है. एक में हो गया वो. इट्स नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस. ओके, सो ये फर्क है. सो ज्यादा कोई फर्क नहीं है. वो 2 स्कूल्स का अपना अपना थोड़ा सा डिफरेंस है. लेकिन दिस इज द तैयारी फॉर ध्याना. सो सोचिए ध्यान कहाँ आया. यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, फिर आया ध्यान. ध्यान कम्स ऑन 7. उसके पहले हमको कितना कुछ करना है. तो अगर वो सारी चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तब जाके आप ध्यान कर पाएंगे. तो हाउ मेनी ऑफ यू वर देयर इन द 5 बेसिक preparations or way of life, the one which we did? Vibhavari, you were there. The 5 basics that we have to follow every day of our life. ये मैंने easy किया था सबके लिए. 5 basics. Now you can write it down if you were not there. The first one is Shatkarma. Then is asana. Then is pranayama. Okay, so उसमें था षटकर्म, आसना, प्राणायाम, ध्यान, धर्म. This is way of life. लेकिन इसके डेप्थ में जब हम जाते हैं तो हमारे लिए ये 7 चीजें आएंगी. यानी कि क्या? सबसे पहले है षटकर्म, उसके बाद है आसन, उसके बाद है उसके बाद क्या आता है? उसके बाद है प्राणायाम. प्राणायाम के बाद क्या आएगा? प्रत्याहार. एक्चुअली प्रत्याहार इनफैक्ट प्राणायाम के पहले आना चाहिए, बट कोई बात नहीं है. प्रत्याहार. फिर ध्यान लिखा है. प्राणायाम के बाद ध्यान, फिर धारणा. Those are the basics of living on a daily basis. I have made that simple for us.
ओके, सो ये 5 बेसिक्स आपको रोज फॉलो करना है। षटकर्म, आसना, प्राणायाम, ध्यान और धर्म। दिस इज द 5 बेसिक, द वे ऑफ लाइफ। ठीक जरा है। सा एक्सप्लेन कर दीजिए व्हाट इज शतकर्मा एंड ऑल। षटकर्मा, व्हाट इज षटकर्मा? षटकर्मा इज cleansing of the body. Okay, Shatkarma is cleansing of the body. Yam or niyam means what? Do's and don'ts for our body. Today we are concentrating on body, so not on the spiritual factor, on the physical factor. So Shatkarma will be what? Cleansing. Cleansing will be what? Right from brushing your teeth, having a bath, going to the toilet. ये बेसिक है। लेकिन षटकर्म में हम डेप्थ में जब जाएंगे तो उसमें और क्या क्या आएगा? उसमें आता है जलनेति, उसमें आता है और क्या आएगा? नौली, क्लेंजिंग ऑफ द बॉडी यानी कि एनिमा, उसमें आता है और क्या आएगा? उसमें धोती, उसमें आएगा नाड़ी शुद्धि, नाड़ी क्लेंजिंग। हम जब नाड़ी को क्लीन करते हैं इस तरह से, सूत्र नाड़ी, सूत्र नाड़ी, हाँ ठीक है। त्राटक, आई क्लेंजिंग। तो ये जो क्लेंजिंग प्रोसेसेस हम करते हैं अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए, दिस इज नॉट डन ऑन अ डेली बेसिस। These are not done daily basis. These can be done once in 10 days, once in 2 weeks, twice in a month. तो हम क्या करते हैं? अपने बॉडी को क्लेंस करते हैं। लेकिन जो डेली की चीजें हैं उसको भी हमें करना है। सो हम मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं षटकर्म से, क्लेंजिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी। ओके, सो वेदर यू डू इट ऑन योर डेली रूटीन and the other ones which you are doing once in a while. We can do a special class only on Shatkarma. What are the different ways and different types of doing Shatkarma? Okay, we will pay attention and I'll make a note of that. उसके बाद आता है, अब हमने अपने शरीर को साफ कर दिया है, क्लेंस किया है, so now my body is ready for asanas. तो हम आसन करते हैं, यानी कि हम योग प्रैक्टिस करते हैं। हम हठ योग करते हैं या अष्टांग करते हैं, विन्यासा करते हैं, वॉकिंग के लिए जाते हैं, रनिंग करते हैं, उस दिन कार्डियो करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करते हैं, हम आसना करते हैं, आसना की तैयारी करते हैं और आसनास करते हैं। ओके, आसनास जब आप करोगे तो आपके शरीर का जो प्राण है वो ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम सांस ज्यादा लेते हैं, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, हमारे पेट के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हो जाता है। तो हमारे जो 5 तत्व है हमारे शरीर में, प्राण, उपान, समान, उद्यान, व्यान, ये क्या हो जाएंगे? थोड़े से ऊपर नीचे हो जाएंगे अपने शरीर में, है ना? क्योंकि हम उल्टा भी करेंगे, कोई आसन करता है तो शीर्षासन करोगे तो उल्टा हो जाएगा, नीचे से ऊपर चला जाएगा। आप रनिंग करोगे या आप कार्डियो करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन आपका ऊपर नीचे हो जाएगा। तो क्या होता है बेसिकली, आप ब्रीदिंग ज्यादा करोगे, राइट? सो आपका व्यान थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। सो जब हमारे ये प्राण अपने शरीर में उथल पुथल हो जाते हैं, जिसकी हमें जरूरत है, क्योंकि दैट इज एग्जैक्टली व्हाट स्टेबलाइजेस आवर बॉडी, what equalizes our body, what maintains it, what balances it. ये जब होता है उसको फिर से एक लेवल में लाने के लिए we need to do प्राणायाम। So जब हम प्राणायाम आराम से बैठ के हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम क्या करता है? हमारे शरीर में जो उथल पुथल हुई है उसे फिर से धीरे धीरे अपनी जगह पे लेकर आता। So it brings it back into its place. Uddana, Samana, back our digestive system. Uddana, all that has to come out. Prana, our breath comes back into normal. Vyana, everything which is there in our body. Space.
It all settles down. When that comes and that settles down, then what do? We are supposed to do pratyahar, which is what it means. You start controlling your senses. But that is a very long process. Okay, we can talk about it next time. But what we can do on a daily basis is we can do dharana, yani ki the flow of senses. So we can control that flow of senses. When that gets controlled, we do dhyana. Dhyana is meditation. तो सोचो, मेडिटेशन करने के पहले आपको कितनी सारी चीजें करनी पड़ेंगी, है कि नहीं? तो मेडिटेशन इज नॉट समथिंग कि भाई बस हम करने बैठ गए हैं. योग इज नॉट समथिंग कि अच्छा आसना, बस आज से मैं योगा क्लास जा रही हूँ, कि अच्छा आज से मैं ध्यान करने वाली हूँ. ध्यान करने के लिए भी तो तैयारी करो. तब अगर आप ध्यान में 10 मिनट भी बैठेंगे तो उसका आपको लाभ मिलेगा. पर अगर आप सोचेंगे मैं किचन में छोले चढ़ाऊंगी और फिर जाके ध्यान में बैठूंगी, तो आपका ज्यादा दिमाग तो छोले पे होगा, तो आप ध्यान कैसे करोगे? आप सोचेंगे कि ऑफिस में मैं पहले ये काम दे देता हूँ और ये करूंगा और वो करूंगा, और फिर आप घर आओगे, इतने ऑलरेडी इतने ऐसे रहोगे और उसमें आप ध्यान करने बैठ जाओगे, तो कैसे होने वाला? आप सोचो, हो सकता है क्या? और मैं तो हमेशा कहती हूँ ध्यान हर चीज में होता है. आप खाना बनाते हो, वो भी ध्यान ही है. आप पिक्चर देख रहे हो तो ध्यान है. आप वॉकिंग आसना कर रहे हो तो भी ध्यान है. आप काम कर रहे हो तो ध्यान ही है वो, क्योंकि ध्यान के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है. तो एक कार्य एक समय पे करें तो पूरी तरीके से आप उसमें ध्यान दे सकते हैं. दैट इज ऑल्सो ध्यान. और हम इंसान ऐसे हो गए हैं ना, और हमारी रूटीन ऐसी हो गई है कि आज की तारीख में स्क्रिप्चर्स भी हमारी तरफ और ज्यादा लीनियंट हो गए. तो उन्होंने भी हमें, अगर हमें ध्यान करना है तो हमें एक समय नहीं, हमें 3-4 समय दिए, जिस समय में हम ध्यान कर सकते हैं. अगर आपको बैठकर आराम से ध्यान करना है, सबसे पहला समय कौन सा है? सबसे अच्छा ब्रह्म मुहूर्त. ब्रह्म मुहूर्त. तो 4 से 6 ब्रह्म मुहूर्त. सुबह सबसे बेस्ट है ब्रह्म मुहूर्त का. ठीक है. उसके बाद दूसरा समय आफ्टर राइजिंग अप, नींद से उठने के बाद. वो तो ब्रह्म मुहूर्त इज द बेस्ट. देखिए 4 to 6 इज द बेस्ट टाइमिंग, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा एनर्जीज आर हाई. ओके, इसलिए दैट इज द बेस्ट टाइम. उस समय आप नहीं करेंगे, उठने के बाद आप सूरज उगते समय आप करेंगे तो भी बहुत बढ़िया है. उस समय आप सूर्य नमस्कार कीजिए. ओके, उसके साथ साथ आप प्राणायाम धूप में बैठ के करिए, तो आपको वैसे भी उसका फायदा मिलता है. लेकिन ध्यान करने के लिए दूसरा समय जो हमारे लिए अच्छा है वो है दोपहर का 11 से 1. ठीक है, दोपहर का 11 से 1 का समय. उसके बाद आता है तीसरा समय, जो है संध्या काल, यानी कि सनसेट, 6 to 8. So evening 6 to 8 is again the third time for us. And फिर है रात्रि, नाइट टाइम. नाइट टाइम में भी अगर आप ध्यान करना चाहते हैं और बिल्कुल आपको नींद नहीं आ रही है, या आपका रूटीन ऐसा है, या जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, ऐसे कितनी सारी चीजें हैं, तो उनके लिए है रात को 11 से 1. सो हमारे लिए, हमारे वेदास में भी हमारे लिए ये सब बहुत अच्छे से कर दिया है. 4 समय दिया है.
जहां पर आप आराम से बैठकर ध्यान कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन उसके पहले की तैयारी अब समझ में आ गई सबको कि उसमें कोई डाउट है? हाँ, गुप्ता जी टेंशन में आ गए हैं। मैं सोचता हूँ एक ऑर्डिनरी सिटी डवेलर के लिए हाँ ये सब तैयारी करना हाँ। जरा कठिन काम है, क्योंकि हमको 1 घंटा निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 1 घंटा ओके, इन 24 आवर्स। ठीक है। तो ये 1 घंटा इज नॉट इनफ टू डू ऑल दिस तैयारी मेरे हिसाब से। हाँ, तो इनमें से जो हमने स्टेप्स बताए हैं, इसमें से आपको क्या लगता है, आपको कहाँ कठिनाई आएगी? कठिनाई नहीं आएगी, टाइम कंज्यूमिंग है ना। अगर 24 क्लेंसिंग ऑफ। घंटे में हम अपनी सेहत के लिए 1.5 से 2 घंटा नहीं दे सकते? अगर हम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं, हम्म। जो कि मेरे हिसाब से रोगियों को छोड़कर जो सो कॉल्ड हेल्दी हैं, हम्म। उनमें से 5% लोग भी टाइम नहीं निकालते। निकालते नहीं है, निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ओके, सो निकालना बहुत आसान है, हम करते नहीं हैं। आज अगर ऐसा नहीं है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय है, ये मैं भी जानती हूँ। क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी, डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि पोटली बांध दो और जाओ ऐसी जगह पे 1 महीना रहो, ताकि तुम वहां पर डिसिप्लिन ला सको और वहां पर बराबर दिनचर्या तुम्हारी सही रहे और तुम बराबर समय निकालो हर चीज करने के लिए। अपनी जिंदगी में अगर हमें पता है कि हमारी जिंदगी में ये डिसिप्लिन नहीं आ पा रहा है, we had a full session, in fact 2 sessions on procrastinating, जहां पर we keep पेंडिंग 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 जो चीज हमारी जिंदगी में हमें करने की जरूरत है, और हम क्या करते हैं उसको, we keep postponing it, we keep postponing it, and we have to stop doing that. So we have to get a routine set, correct? Whether it is for food, whether it is for shat karma, whether it is for pranayama, for asana, for dharma, for dhyana, for dharana, for pratyahar, for samadhi. Because at the end we want samadhi. तो अगर हम सबको ये समाधि चाहिए, तो उसके लिए ये सारा प्रोसेस करने में हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अगर आप सब बैठ के अभी लिखेंगे, ये 5 मिनट हम लेंगे और लिखेंगे, तो आप सब नोटिस करेंगे कि इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सुबह सुबह हमें षट कर्म करना जरूरी है, उसके बिना तो कार्य शुरू नहीं हो सकता। ठीक है, षट कर्म में आप डिवाइड कर लीजिए कि अच्छा भाई 2 हफ्ते में मैं ये करूंगा, या एनेमा फिक्स रखूंगा, जल नेति में करूंगा, ये सारी फिक्स चीजें हो गई। ओके, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आसन आता है। तो हमारी एक्सरसाइज रूटीन हम सेट कर देते हैं। हफ्ते के 6 दिन है, 6 दिन में से रोज मैं ये करूंगा, 1 घंटा आपका फिक्स है। तो आपके आसनास बराबर आप फिक्स करोगे। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम के बाद आएगा, बोलिए, ध्यान। तो प्राणायाम और ध्यान मिला के 1 घंटा भी हम करें तो बस हो गया। तो एक्चुअली टोटल मिला के आप कितना समय दे रहे हैं? दिन के 2 घंटे। और अगर ये दिन के 2 घंटे आप अपने आप के लिए ये करने के लिए नहीं निकाल पाएंगे, तो जो 5वीं चीज है, लाइफ, which I have said, the 5 basic ways of life. So what is the 5th one? Dharma. Dharma. Dharma towards who? We had discussed this. Dharma towards myself. Dharma towards my family. Dharma towards my society.
The 3 ways of dharma. ये तीनों चीजें आप करेंगे कैसे? जब आप ये बेसिक नहीं कर पा रहे हैं तो धर्म को आप निभाएंगे कैसे? और धर्म को नहीं निभा पाएंगे तो हम कर्म कहाँ से करेंगे? कर्म कहाँ से आएंगे? जब धर्म हम नहीं निभा पाएंगे तो धर्म towards myself, what is the first dharma towards myself? Taking care of my body, physically, mentally, emotionally, spiritually. और अगर ये 2 घंटा हम अपने आप को नहीं दे पा रहे हैं तो आपका तो पहला धर्म ही खत्म हो गया। ये खत्म हो जाएगा तो फिर हम कर्म क्या करेंगे? और ये धर्म नहीं होगा तो आर यू रियली बीइंग ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर फैमिली? Emotionally, are we able to manage our family? Or are we always angry with them, upset with them? Are we sorry for everybody? Being able to pay attention to the needs. Are we always in a rush, in a hurry? Then we go to work or we pay attention to the dharma towards society. क्या हम सच में जब हम काम पे जाते हैं तो पूरा ध्यान काम पे लगा सकते हैं? क्या हम अपने वर्कर्स हैं, अपने एम्प्लॉइज हैं, अपने को कलीग्स हैं, उनकी तरफ हम पूरी तरह से अपना धर्म निभा पाएंगे? निभाना चाहते हैं ना, वी वांट टू डू इट, बट विल यू बी एबल टू डू इट इफ यू आर नॉट एबल टू डू दिस बेसिक, which is the dharma towards yourself? And if you cannot do this, then you cannot reach here for sure. Think about it. Can you do it? Are you always shouting at your maid? Are you always having a problem with people in your society? Are you always upset and always in a rush with your colleagues and with your co-workers? How much are we appreciating the society? What are we really doing for the society to improve our environment? So when we want to do all of this, first we have to do this. And to do this is so simple. Asana, pranayama, ध्यान. लेकिन ये तीनों को हमें अगर सही मायने में करना है तब जाके वो 2 चीजें आती है जो योग का प्रतीक है, यानी कि प्रत्याहार और धारणा, जिसके बिना ये हम ध्यान नहीं कर सकते. प्रत्याहार इज व्हाट? कंट्रोल ओवर योर सेंसेस. What does it mean? What are the senses? What are our senses? Control over our senses. Can you tell me, when I say senses, what do we mean by senses? Smell. हाँ जी? Smell, see, touch. Okay. Smell, Touch, see, hear, and feel. Something is, I think so, it's feel. that is touch. Yeah, one more. See, hear, Taste. smell, Taste. taste. Yes. Okay, these are the 5 senses. आपको लगता है यही है हमारे सेंसेस? और कौन से सेंसेस हैं हमारी बॉडी में फिर? ये तो 5 है, ये हम सबको अच्छा अभी समझ में आ गए. ओके, व्हाट आर दे? हियरिंग, सीइंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, टचिंग. ठीक है? नाउ गिव मी द अदर 5. I told you also, देखो और 5. There are 5 more senses. Pleasures and sorrows. No. It is These circulation, are digestion. Very good. Please tell us. It's all the internal organs. Correct. Breathing, digestion, Breathing, digestion. all the respiratory system, the digestive system, the excretion, Excretion.
Then what else? Movements, Yes. okay? And Circulation. hmm? Circulation. Circulation. circulation, okay? सो टोटल मिला के हमारे 10 सेंसेस होते हैं, एक्चुअली 20 होते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दोस माइनर वंस. वो 20 होते हैं एक्चुअली, लेकिन द मेन सेंसेस आर नॉट 5. मेन सेंसेस आर 10. वी हैव 10 main senses of our system. So those are the sense organs, and we have the main, those are the elements, that is the working organs. So there are 10 senses in our body. Now when we say pratyahar, pratyahar means control over these senses. So now can you imagine what does that mean? When we say control over our senses, कितनी चीजें हो गई उसमें? Control over our smell, our breath, यानी कि control on our respiratory, our breath. Control over what you hear. क्या सुनते हो, क्या छोड़ते हो? Who is going to control it? We are going to control. Control on what you see. क्या देखते हो और देख के क्या सोचते हो? Only we can control. Control over our tongue. The worst thing. Very difficult. खाने के लिए भी और बोलने के लिए भी. But that is in our hand. Control over our digestive system. क्या खाते हैं हम? कैसे खाते हैं? कब खाते हैं? It is in our hands. Control over our movements, our circulation is in our hands. Control on our thoughts is in our hands. So is there any system, any way in all these 10 senses, do you think that you cannot control? ऐसा कोई भी आपको ऐसा लगता है आज जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं, जहां आपको ऐसा लगता है कि इसमें से ऐसी कोई भी सेंस है जो मैं नहीं कंट्रोल कर सकता हूं या कर सकती हूँ? देखिए, आपकी किताब को देखिए और सोचिए. Actually, genuinely speaking, is there a possibility that out of these 10 senses, I cannot control one also? Any of them? Taste. Taste. Difficult, very difficult. I said it's very most difficult is taste. But Taste and circulation, how does one control it? digestion also. Or digestion? These systems. Digestion also, yeah. Yeah. So this is all according to your Shat Karma, your asana. You will be able to control or not. If you do properly Shat Karma, if you do properly asanas, if you will do your pranayama correctly. What did we discuss? The pranayama, जो हमारा प्राण व्यान समान सब मिक्स हो जाता है, तो प्राणायाम क्या करता है? उसको फिर से Balance. ले आता है. तो फिर आपको लगता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं रहेगा? रहेगा ना? सीजन के हिसाब से खाएंगे, अपने शरीर के हिसाब से खाएंगे, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा. What about respiration? प्राणायाम से सही रहेगा? प्राणायाम अगर हम सीजन के हिसाब से तैयारी करेंगे तो हमें कभी भी सर्दी, खांसी, एलर्जीज होने के चांसेस हैं क्या? नहीं होंगे. पर हमारे सेंसेस पे हमारा कंट्रोल नहीं है ना? अगर हम अपने सेंसेस पे कंट्रोल करेंगे, प्रत्याहार को फॉलो करेंगे, तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं होगी. पर हम नहीं कर पाते हैं. तो ये हमारा एक तरीका होना चाहिए जिंदगी का कि हमें प्रत्याहार अपनी जिंदगी में लाना चाहिए. और एक सेंस है जो हम नहीं मैनेज कर पाते हैं. थॉट्स जो हम देखते हैं,
जो हम सुनते हैं और उसके बाद हम जो सोचते हैं, अगर उस चीज को हम कंट्रोल करने लग जाएंगे तो आप जरा सोचिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या, आपका सर्कुलेशन, आपका एक्सक्रीशन, सब हाँ, है ना? बट आर वी डूइंग इट? और जब हम प्रत्याहार फॉलो करना लग जाएंगे तो आप सोचिए कि धारणा फॉलो करना कितना आसान हो जाएगा, यानी कि फ्लो ऑफ सेंसेस। हमारी जिंदगी में वो धारणा लाना हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। और ये करने के लिए भी हमारे पास एक और तरीका दिया है हमें स्क्रिप्चर्स ने, क्योंकि हमसे नहीं होता है तो उन्होंने क्या कहा, लीजिए एक और चीज लीजिए। तो प्राणायाम के साथ आप एक और चीज कर सकते हैं जिसके कारण आपको ध्यान करने के लिए आसान होगा, और वो क्या है? मुद्रा। Mudra. मुद्रा। ठीक है, सो मुद्रा और बंध। तो अगले हफ्ते हम बंध की क्लास करेंगे। ओके, मेरे को ध्यान में रखिएगा, हमें कौन सी क्लास करनी है? एक षटकर्म की क्लास करनी है, एक मुद्रा बंध की क्लास करूंगी मैं आप लोग के साथ। सो जब आप प्राणायाम कर रहे हैं और फॉर एग्जाम्पल आप सांस लेते हैं, आपको सबको मैंने बॉक्स ब्रीदिंग सिखाई है, तो जब हम सांस लेते हैं तो हम वहां क्या करेंगे? हम बंध अप्लाई करते हैं। क्यों अप्लाई करते हैं बंध? क्योंकि जब हम सांस लेकर उस सांस को रोकते हैं और जब उस सांस को बाद में हम कुछ क्षणों बाद छोड़ते हैं तो आपको क्या होगा शरीर में? आप करके देखिए। कामनेस आएगी। नहीं, करके देखिए। जब हम सांस ले रहे हैं, लेफ्ट से सांस लीजिए और उसको सांस को होल्ड करके रखिए, बंद, कुंभ, होल्ड करिए, जितना आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करिए। और जब आपको छोड़ना रहेगा तो राइट से छोड़िएगा, लंबा छोड़िएगा, पर जहां तक होल्ड कर सकते करिए, फिर राइट से छोड़िए, फिर लंबी सांस लीजिए राइट से और वहां पकड़ के रखिए, उसको होल्ड करिए, और फिर लेफ्ट से छोड़िएगा जब आप छोड़ना चाहेंगे। क्या आपको क्या कुछ फील हुआ? Thoughts थोड़े कम हो जाते हैं उस टाइम पे एक्चुअली। थॉट्स कम हो जाते हैं, ओके, वेरी गुड। और चक्कर आता है। चक्कर आते हैं, करेक्ट, चक्कर आते हैं। और होल्ड उस टाइम तक करें जब तक सफोकेशन थोड़ा होने लगता है। जहां तक आप कंट्रोल कर सकते हो, नॉट सफोकेशन, जहां आप कंफर्टेबली कंट्रोल कर सकते हो, जहां तक यू शुड नॉट फील एकदम। फिर आप छोड़ेंगे ना तो आपकी छोड़ जब होगी तो आप धीमी धीमी नहीं छोड़ोगे, आप एकदम से छोड़ोगे। वो नहीं करना है हमें। जब सांस जैसे हमने आराम से ली है वैसे आराम से छूटनी चाहिए। तो इसीलिए वो बंद उतना होना चाहिए जहां आप कंफर्टेबली उसको होल्ड कर सकते हो। तो ये बात एकदम सही है कि हमें चक्कर आने लगते हैं, थॉट्स कम हो जाते हैं। चक्कर क्यों आते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? Body needs oxygen. When it is deprived of oxygen, I think that time चक्कर आते हैं फिर। सो आवर बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन। जब हमने बंद अप्लाई किया, our body got deprived of oxygen, पर जब हमने उसको खोला तो क्या हुआ?
जब हमने उसे खोला तो अचानक से क्या हुआ? और सबसाइड हुआ, चक्कर आना सबसाइड हुआ। पर उस समय आप सोचो, ओके, अगर मैं पानी चालू करती हूँ, ब्लड फ्लो एकदम इंक्रीज द ब्लड सप्लाई वेरी फास्ट. ओके, करेक्ट. सो जब हम पानी चालू करेंगे, अब अचानक से मैंने पाइप को बंद कर दिया, ऐसे पकड़ लिया, तो जोर से निकले। और फिर मैंने उसको छोड़ा, तो क्या होगा? गश, गश, Force. गश आउट। Force. Gush of oxygen. Okay. So when we apply bandh, क्या होता है? उस समय जो आपको लगता है कि ऑक्सीजन डिप्राइव हो गया आपका बॉडी, लेकिन जब आप उसको खोलते हैं तो आपके शरीर में देयर इज अ गश ऑफ ऑक्सीजन विच गोज टू योर ब्रेन, एंड देयर इज अ फ्लो आउट, a gush of flow out of carbon dioxide. Oh, okay. Okay. Okay, so the thing is, what we have done, we are stimulating our body system with more oxygen inside and more carbon dioxide outside. And that is why we should apply bandha. Okay, but ये बंधा हम कब अप्लाई कर सकते हैं? This is the way of pratyahar, controlling our senses. So this is one way of controlling your breath. बाकी कितने senses हैं? So how will you control your taste, your thing? When should one do this bandha? When should one do it? One should do bandha every time you do pranayama. And for how many minutes or? प्राणायामा एक्चुअली आपको मिनिमम, सच में बोलूं तो आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्राणायामा कम से कम 45 मिनट्स रोज करना ही चाहिए, एवरी डे, रोज करिए. आप ध्यान थोड़ा कम कीजिए चलेगा, लेकिन आज के टाइम पे जो हमारी लाइफ है उसमें हम ध्यान से ज्यादा, मैं तो प्राणायाम को ज्यादा जोर देती हूँ, क्योंकि जब तक आप ढंग से प्राणायाम नहीं कर पाते हो तब तक आप ध्यान इतने अच्छा नहीं कर सकते. Can we? Which are the most important pranayams should be done every day? Okay, we will do one class. Is it Anulom, Vilom, and these? Pranayama की class. Okay. So 5 basic pranayams. सबसे पहले आएगा Kapalbhati. Kapalbhati. Kapalbhati is not a pranayam. Cleanser. Kapalbhati is the cleansing. Kapalbhati is like Shat Karma, which is the cleansing of the nadis. So yes, it is a part of pranayam, but actually it is not pranayam. Okay, but you start with Kapalbhati always, because that cleanses your nadi. So we will do a special class on this. So Kapalbhati. Once you finish Kapalbhati, then you do Bhastrika. Okay, so Bhastrika will come first. Bhastrika के बाद क्या आएगा? Anulom, Vilom. Anulom, Vilom. Brahmi. Okay, ब्राह्मी करेंगे, उसमें हम क्या डालेंगे? उज्जयी प्राणायाम. एक्चुअली उज्जयी के साथ करना चाहिए. नहीं आता है, मैं आपको सिखाऊंगी. ओके, फिर आएगा, उसके बाद आएगा शीतला, शीतली, शीतला. बट ये कब आएगा? ड्यूरिंग द हॉट सीजन, समर, नॉट इन द कोल्ड. सर्दी में नहीं करेंगे हम, सिर्फ गर्मी के मौसम में करेंगे. ठीक है, फिर आएगा अनुलोम विलोम. या तो आप उसे अनुलोम विलोम बुलाइए, नाड़ी शोधन बुलाइए, सुख आसना बुलाइए, बहुत सारे नाम है उसके लिए.
अनुलोम विलोम। So then when do we, ये जो आपने अभी बताया तो ब्रेथ को रोकना, ये लास्ट में करना चाहिए? जो ब्रेथ रोकने की जो प्रैक्टिस होती है वो कई चीजों में आती है, जैसे कि वो कपालभाति में भी आप कर सकते हो, ठीक है, वो आप शीतला में भी ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको नहीं आता है तो नहीं करेंगे। सबसे इजी किस में आता है? वो अनुलोम। अनुलोम विलोम। तो सबसे इजी टू स्टार्ट विथ इज इन अनुलोम विलोम। Okay, and then we finish it with Aum. तो Aum हम कैसे करेंगे? हम दो चीजों में कर सकते हैं। एक हम कब करेंगे? जब हम भ्रामरी कर रहे हैं तो हम उसमें Aum करेंगे, चैंटिंग, ओके, वाइब्रेशन। और फिर लास्ट में टू कंप्लीट द होल प्राणायाम वी विल डू Aum। अब जब हम ये सारी प्रैक्टिसेस करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं? हम मुद्रा करते हैं। तो वी डू डिफरेंट मुद्रास। ओके, तो ये जो मुद्रास होती है ये हमें मदद करती है ताकि हम अपनी जो प्राण है उसे सही तरीके से बढ़ाएं। अगर आपको दूसरी कोई भी मुद्रा नहीं है तो चिन्ह मुद्रा भी करेंगे ना तो एकदम ठीक है। दिस इज चिन्ह मुद्रा। Just fold your index finger, keep your thumb up. This is चिन्ह मुद्रा। इसमें भी आप प्राणायाम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्राण मुद्रा, प्राण मुद्रा में आप प्राणायाम कीजिए फर्स्ट क्लास। नहीं है तो समान मुद्रा, ऑल टुगेदर। These are basic pranayams. ध्यान मुद्रा। Mudras help us, bandhas help us to improve our prana system, to improve the prana, getting us ready for dhyana, controlling our senses. It helps us to control. That is the reason why we say ध्यान करते हैं तो आंखें बंद रखिए, प्राणायाम करते हैं तो आंखें बंद रखिए, because eyes is the source of distraction. Eyes is the first source of distraction. So that is why we keep our eyes closed so that we are not distracted. Then comes the ears, जो हम सुनते हैं. So that is why we say, till you are not a very good practitioner, you should find a proper space and sit and do your pranayam or your dhyana. Once you are used to it, you get it, then you can do anywhere. But till then, find your space. Then comes taste. Because stop thinking of food. Do it empty stomach. Pranayam, dhyana, asana, all will be done empty stomach. क्योंकि आपका शरीर एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है. So we do it empty stomach. So basic rule. Okay. Then comes position. किस तरह से हम बैठेंगे? क्योंकि आपकी एनर्जी कैसे होती है? स्नेक की तरह या गणपति की सूंड की तरह, ऐसे. तो अगर वो ऐसे जाएगी तो आपको भी तो ठीक से बैठना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे बैठोगे तो वो यहाँ चली जाएगी, ऊपर जाएगी नहीं. तो अगर हम ऐसे बैठेंगे तो ध्यान नहीं कर सकते, प्राणायाम नहीं कर सकते. अगर हम एकदम ऐसे बैठेंगे तो भी हम ध्यान नहीं कर सकते, प्राणायाम नहीं कर सकते. Relax. We will do this in another class where we will do proper spine, how to sit,
how to get into dhyana and pranayama. Okay, so this is the basic, and we will do bandhas. All the bandha. Okay, I've written that already. Right? So any questions on this? मैम समटाइम्स कैसे होता है ड्यू टू लाइक वी हैव गॉन टू पार्टी और समथिंग एंड हमारा क्लेंजिंग प्रॉपर नहीं हो पाता है बॉडी का, तो उस समय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए प्राणायाम नहीं and करना चाहिए प्राणायाम? या आसनास बोथ? नहीं, करना ही चाहिए। ओके। प्राणायाम और आसना हम कब नहीं करते हैं? जब हम बहुत बीमार हो जाते हैं। तो अगर आप फिजिकली बीमार हो, ओके, बुखार है या आपका स्टमक अपसेट है, यानी कि अगर आपको लूज मोशन बहुत हो रहे हैं या पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है, हर्निया हो गया है, फिजिकल इलनेस जिसे कहते हैं, हार्ट अटैक हो गया है या दिल की बीमारी अचानक से हो गई है किसी को, या प्रेग्नेंट है, तो कुछ कुछ आसना है, कुछ प्राणायाम है जो प्रेगनेंसी में हम नहीं करते, अवॉइड करते। ओके, वर्टिगो है तो भी हम कुछ प्राणायाम है जो प्रैक्टिस हम नहीं करते, आसना हम नहीं करना चाहिए। ओके, सो इस तरह से हाई ब्लड प्रेशर जिनको होता है, तो अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उन लोगों को कुछ आसनास और कुछ प्राणायाम अवॉइड करने चाहिए। तो फिजिकल अगर आपको बीमारी होती है उस समय आपको नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए, क्योंकि उस समय ऑलरेडी आपका बॉडी फाइट कर रहा है किसी चीज के लिए। तो हम अपनी एनर्जीज को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं उस समय, उसको ऑब्जॉर्ब नहीं करते। आसना में हमारी एनर्जी ऑब्जॉर्ब होती है, लगती है, हमें जरूरत पड़ती है, तो वी ऑब्जॉर्ब दैट एनर्जी वी गेट बैक इन ध्यान। That is why in any state you can do dhyana, right? So that we start conserving that energy again during dhyana. लेकिन ऐसी कई बार होगी जहां आपको फिजिकल पेन है, फिजिकल प्रॉब्लम्स है, तो आप ध्यान भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका सारा ध्यान तो उसमें है, राइट? तो इसीलिए हमारे लिए ऊपर वाले ने और देवों ने बहुत ही अच्छी चीज दी है, and that is mantra chanting. तो इसीलिए हमारे जो मंत्र होते हैं वो हमें घर में हम हमेशा चालू करते हैं, घर में लगा के रखते हैं, सुनते हैं, क्योंकि जब हमारा ध्यान बटा रहता है, जब हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, जब बहुत सारी चीजें दिमाग में होती है, जब मन अशांत रहता है, तो फिर क्या काम आता है? क्योंकि आप बोल तो नहीं पाते, अगर हम बोलेंगे भी तो वो हमको पता भी नहीं है। आज के जमाने में मैंने एक चीज नोटिस की, मेरे खुद की भी, कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ने में आजकल हमें 2 मिनट भी नहीं लगते। जय हनुमान ज्ञान कुंज सागर जय कपीस लोक जागर राम दूत बदाम अंजनी पुत्र, दिस इज द वे वी डू इट, है कि नहीं? पट 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 हम फिनिश कर देते हैं, क्योंकि हमको बस कंप्लीट करना है। लेकिन जब इसीलिए हम जब मंत्र हमारे घर में रखते हैं तो उसकी जो वाइब्रेशंस है, कम से कम वो तो आपका शरीर ले सकता है, कम से कम वो तो आपके घर में जा सकता है पूरी तरह से। तो जब हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, हम आसना नहीं कर सकते हैं, प्राणायाम नहीं कर सकते हैं, ध्यान में भी हमारा ध्यान नहीं लगता है, तो हमें मंत्रस, हमारे चांट्स को हमें लगा के रखना चाहिए, ताकि हमारा शरीर उसको ऑब्जॉर्ब करता रहे, हमारा टच, हमारी स्किन उसको ऑब्जॉर्ब करे, हम सुनते रहे, हमारी सोच वहां पर उसको इफेक्ट हो, और उसके वजह से हमारे सेंसेस बेटर होते हैं, because they have a very strong vibration. Two of the strongest vibrations is Gayatri Mantra. Gayatri Mantra. Okay, very strong vibrations. Om, very strong vibrations. Mahamrityunjay Jap, very strong vibrations.
तो ये जो होते हैं गुरु मंत्र, वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस, फिर गुरुवाणी, वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस। ऐसे कितने हैं हमारे पास जिनके वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो वो आप अगर घर में लगा के रखेंगे, आप भी अगर नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आप लगा के रखेंगे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा उसका फायदा, राइट? So if you're not well, or if somebody is not well and they're not being able to do, best is to put chants and mantras and allow that vibration to be absorbed. Yeah. Any other questions on that? रात को भी चलता रहे मंत्र विदाउट टॉपिक, तो आई थिंक दैट विल बी एडेड बेनिफिट। Very good. Excellent. लो वॉइस में, Yes. लो वॉल्यूम। Yes. Only thing in the night is that you have to allow your body, you have to allow your senses to completely release without any disturbance. You have to allow your body to go into its superconscious mind, which is the fourth stage. So हम जब एकदम गहरी नींद में चले जाते हैं, for some time your body goes into its superconscious sense. That has to be the ability of your own energies, not depending on something else. So you can play it when somebody is, again, energies बहुत low है, negative energies है, when their own energies are not working for them, when you're not being able to sleep. So जैसे insomnia है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जब आप किसी बीमारी से लड़ रहे हैं और आपका मन अशांत है, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन रेगुलर में मैं कहूंगी कि इस पे डिपेंड मत होइए, अपने अंदर की जो म्यूजिक है, अंदर की जो आपके सेंसेस हैं, उसको अपना काम करने दीजिए। लेट इट रीच दैट सुपर कॉन्शियस सेल्फ ऑन इट्स ओन। ओके, दैट टाइम वी डोंट डिपेंड ऑन म्यूजिक। So, yes. Anything else? आप ज्ञान का भंडार आप बांटते रहते हैं और हमको अपनी यथाशक्ति ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही काम है, ये मेरा कार्य है। ऐसा है गुप्ता जी। One little question, not on Yes, this, it's a little out of the thing. I have been having a shoulder pain because I have pushed luggage और बहुत हाथ से उठाई हूँ, जो probably the muscle was not used to it. What is the best thing to do for that? Okay, 2-3 easy things, Madhulika. One is do cold and warm press. Cold and warm दोनों alternately? Cold and warm. So you should do warm press and cold press, both. Allow the circulation to start. Okay. Correct? So how दोनों करती रहो, मैंने 2 minutes पहले this. आप क्या करोगी? वार्म करोगी। Okay. ओके, सो सपोज आप 2 मिनट के लिए वहां वार्म प्रेस देते हो, उसके बाद आप 30 सेकेंड्स के लिए कोल्ड प्रेस दोगे। Okay. फिर आप फिर से वार्म प्रेस दोगे, फिर आप 30 सेकेंड्स के लिए कोल्ड प्रेस दोगे। दैट इज वन। नंबर 2, लिफ्ट योर शोल्डर्स ऑल द वे अप। एंड अगर इस तरह से आप नहीं खड़ी रह पा रही हो, तो स्टिक टू द वॉल। वॉल को चिपक जाइए और उसके भरोसे पे आप एकदम सीधा अपने शोल्डर्स को खड़े करके उस पे आप ऐसे उसको रखोगे। एंड प्रेस द वॉल विथ योर पाम्स। जितना हो सके एक बार के लिए दुखेगा, लेकिन वी हैव टू रिमूव इट आउट। सो प्रेस इट विथ योर पाम्स and stand against the wall and do this both ways.
front also and Back. back also. So do it both ways. Okay. After that, another one is hold your hands. So what you will do, like this. Okay. Okay. And if you can go down, great. If you can't, but hold it as much as you can. ठीक है, ये हम करेंगे. और उसके बाद उल्टा उसका, यानी कि हगिंग. तो आपके जो पीछे के स्कैपुलर्स होते हैं वहां तक आपका हाथ जाता है तो वेरी गुड. नहीं जाता है तो जहां तक जाता है लेकर जाना है. ओके. सो पहले ऊपर का टचिंग विद द फ्लोर, फिर पीछे. ओके, दैट इज वन. देन दिस इज वन. ये हमें करना है अपने शोल्डर्स के लिए. ओके. एंड इफ यू नो हाउ टू डू भुजंगासन, Yeah, lying down on the belly and या सो अगर आप वो कर सकते हो तो ग्रेट. और उसके साथ साथ बेबी पोज कैसे करते हैं आता है? crawl like a hugging सामने झुक के. ओके. सो मेरा जो मेडिटेशन है एक एक्चुअली में है वो, तो बेबी पोज. हाउ डू वी डू? वी सिट इन वज्रासन And bend forward. and then you bend forward. Yes. बट आपके हाथ एकदम आगे होने चाहिए. जितना अपने हाथों को आगे करेंगी उतना ज्यादा आपके शोल्डर में आपको अच्छा लगेगा. ओके. ये करके आप क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पर हल्का हल्का बाम लगा दीजिए. ओके. हल्का हल्का बाम लगा के उसके बाद आप हॉट एंड कोल्ड प्रेस कर सकते हो. Again. Thank you. बाम लगाने के बाद नूपुर जी, बाम लगाने के बाद हॉट एंड कोल्ड. हॉट एंड कोल्ड. बाम के बाद. यस. ओके. व्हाई? बिकॉज वो जो बाम आपने लगाया है वो आपके शरीर में फिर प्रॉपरली ऑब्जॉर्ब होगा. अगर आप हॉट एंड कोल्ड और बाम नहीं करोगी तो दूसरा क्या उपाय है जो मैंने पहले भी एक बार बताया हुआ है, सरसों. Okay. सरसों का पेस्ट. तेल. सरसों का पेस्ट बना के जो हम लगाते हैं. मैं राई का. नहीं सजेस्ट करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत गर्मी है. सो इसीलिए आई एम नॉट. यूरिन. What about Hello. अदरक? अदरक का आपने Hello. पहली बार पेन हाँ, का. अदरक का आप रस लगा सकती हो. यस गुप्ता जी. यूरिन. यूरिन तो बेस्ट ही है लेकिन मधुलिका नहीं करती है यूरिन का पैक. but we can put urine also. Yes, yes. In fact, you can do urine pack. It really works well. But I know she is not going to do. That is why I am suggesting her other things. जिसमें से एक्चुअली काम करता बहुत अच्छा वो है सरसों. लेकिन सरसों अभी क्या है, गर्मी बहुत है यहाँ पर, इसीलिए मैं थोड़ा सा कम सजेस्ट करती हूँ. लेकिन अगर आपको चलता है तो आपको सरसों का पेस्ट बना के आप सरसों का पेस्ट भी लगाएंगे तो आपका दर्द जाएगा. बट ये एक्सरसाइजेस जरूर कीजिए बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट. Try doing it, but वो दर्द जैसे रुक गया है. It's not leaving. Otherwise, come over. I will give you an acupressure session. Okay, I'll talk to you. Yeah, come and let me do the acupressure session for you. Thank you. Okay. So this is a nice, beautiful thing. Of course, I had planned something else, but as usual, something else comes up and then we talk about something else. So but it's a nice thing that today this topic came up about dhyana. And now I would like all of you to think more on this. Actually, आप लोग बैठ के जरूर इस पे थोड़ा विचार कीजिए और उसके बारे में थोड़ा लिखिए.
तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, प्रत्याहार करना डेली में तकलीफ होती है, अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना मुश्किल होता है, मना नहीं है, लेकिन यही तो जीवन है, यही तो जीवन है। और ये हमें सबसे अच्छी तरीके से हम कैसे जी सकते हैं, यही जीवन है, सिंपल। उसको हमें डिफिकल्ट नहीं बनाना है अपने आप के लिए, उसी में से हम आसानी से कैसे चीजें कर सकते हैं, अपने उम्र को ध्यान में रख के, अपने आसपास के अपने पूरे वातावरण को कैसे ध्यान में रख के हम कैसे कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। Okay, we don't have to make it difficult for ourselves. Yes, Gupta ji. Okay, so remember today we have discussed a very very special topic. So हम क्या करेंगे, षट कर्म, उसके बाद आसना, प्राणायाम। एक्चुअली प्राणायाम हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं मुद्रास एंड बंधास, उसका हम अलग से क्लास जरूर लेंगे। उसके बाद आता है, उसके लिए हमें क्या करना है, एक्चुअली क्या करना है, प्रत्याहार करना है। लेकिन प्रत्याहार मुश्किल होता है, लेकिन वो करना जरूरी होता है। जब प्रत्याहार हम कर सकते हैं तब हमारे जीवन में धारणा आती है, और धारणा जब आती है तो ध्यान करना आसान हो जाता है। आसान हो जाएगा जब ध्यान एक्चुअली आप लंबे समय के लिए अपने जीवन में उसे डाल पाएंगे या ढाल पाएंगे, तब जाके कहीं ना कहीं पता नहीं किसी ना किसी को समाधि मिलती है। बाप रे। तो एम वो नहीं होना चाहिए हमारा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जीवन में अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारी 5 चीजें आ जाती हैं, षटकर्म, आसना, प्राणायाम, ध्यान और धर्म। हम जिस हिसाब से जीवन जीते हैं उसमें धर्म निभाना बहुत जरूरी है। So this is the basic of our thing. Let us work on this. All of us can work on this now, and how we can apply this in our life, how we can make it easy. Let us work on that. So our first step will be Shat Karma. So we will do the next time, we will do Shat Karma. Okay, what are the ways of doing it, how to do it, how to make it simple, what are the things that are involved in it, all of that we can cover. In the meantime, if you have any questions also, you can put it up on the group so that we can answer. आएगा मेरे साथ में। Okay, so we can answer those questions also. Anything else for today? Hello, I have one Joining question. for the first time, I hope you all had a good session. Yes, Wonderful, I have wonderful. one question. Yes, yes, Rupali ji. Actually, I am having some abscess at the some difficult place, so it's painful. I tried jeera and dhania water, sabja, and corfod, putting corfod on it. So what else can I do? तो आपके लिए 2-3 चीजें बहुत अच्छी हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि जहां आपको ये हुआ है वहां पर आप कैस्टर ऑयल लगाइए। Okay. तो कैसे लगाते हैं उसको? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपको कहीं जेनिटल्स में प्रॉब्लम है ये? No, actually it's on the back side. पीठ में है? No, Arms की तरफ है? on buttocks. हाँ, या एनस में है जहां से हम पॉटी करते हैं? No, actually on the buttocks. तो आपको क्या करना है, कॉटन में आपको कैस्टर ऑयल लगाना है। Okay. ओके, और उसको आपको फ्रीजर में डाल के फ्रीज कर देना है। Okay. जब वो फ्रीज हो जाएगा तब जहां आपको तकलीफ है वहां पर उसको लगा देना है। Okay. ओके, और उसके ऊपर आप चाहें तो आप क्लिंग रैप लगा सकते हो। अगर वैसी जगह नहीं है, अगर आप अंडरगारमेंट्स पहने हो, तो अगर आप पैड पहनना चाहते हो तो पैड पहन के आप वो लगा सकते हो, ताकि आपका सब ड्रेस वगैरह खराब नहीं हो जाए। Okay. ओके, And how many times should I put that? उसको लगा के रात को सो जाना है। Okay.
और दिन में लगाना है तो दिन में भी आप लगा सकते हो उसको फिर से। Okay. नंबर 1 आपको ये करना है। नंबर 2 आपको क्या करना है, अगर आपके घर में टब है तो टब को थोड़ा कर लीजिए और उसमें आलम होता है, फिटकरी, Yes, I know. Yes. उसको मिलाना है और उसमें आपको अपने शरीर को डिप करके रखना है 20-25 मिनट के लिए। Okay. तो आपको या तो आप कटी स्नान का जो टब होता है उसमें आप बैठ जाइए, अगर वो नहीं है तो आपके पास टब है तो आप उसमें अपने पूरे जितना शरीर है उसको डिप करके बैठ जाइए। Okay. आलम मिक्स कीजिए और उसके बाद उसमें आप बैठिए। Okay. ठीक है, तो ये 2 Okay. चीजें आप करिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। Thank you. नो Thank you so मिर्ची, much. ओके, नो मिर्ची, Yes, yes, sure. नो फूड विच हैज सीड्स, फॉर एग्जाम्पल Okay. हरी मिर्च, Okay. नींबू मिर्च, टमाटर, इनमें जो Okay. सीड्स वाले जो खाने होते हैं ना, जो हम डायरेक्टली खा लेते हैं, वो नहीं Okay. खाना थोड़े दिन। Okay. भिंडी, हाँ, भिंडी, जिनमें Okay. सीड्स होते हैं, अच्छा. आपको खाना है तो सब सीड्स निकाल के खाना है। Okay, तो daily I consume bhindi water. Should I take it or not? पानी इज डिफरेंट, मैं Okay. भिंडी की बात कर रही हूँ, भिंडी पानी Directly नहीं लेना ही खाना. चाहिए। Okay, okay. क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि आप नोटिस करेंगे ये सारी जो सब्जियां हैं, जैसे हरी मिर्च है, ढबू मिर्च है, टमाटर है, इनमें जो बारीक सीड्स होते हैं, ठीक है, वो बारीक सीड्स क्या आप चबाते हो क्या? नहीं. नहीं चबाते हैं, वो क्या हो जाता है, आप Directly डायरेक्टली। consume करते हैं. तो ये सीड्स जब हमारे सिस्टम में जाते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा अपने सिस्टम को अंदर से स्क्रैच। Okay. Okay. तो अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी तकलीफ है Okay. तो जरा सोचिए कि और क्या होगा उसको, तकलीफ बढ़ेगी फिर. तकलीफ बढ़ेगी। तो वो बोलते हैं ना, Yes. जैसे ऊपर घाव हो गया और उस पे आपने नमक डाल दिया, Yes. तो आप अपने अंदर के सिस्टम के लिए वो कर रहे हो, Okay. ये हम अवॉइड करते हैं। Okay. ओके, तो आप वो अवॉइड कीजिए। आप पानी जरूर लीजिए, आप धनिया का पानी है वो लीजिए, आप सब्जा का पानी है वो लीजिए, कोई प्रॉब्लम Okay. नहीं है, वो बहुत कूलिंग Okay. होता है, वो सब आप ले सकते हो। पर ये Okay. 2 चीजें कीजिए, इससे आप ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी। Okay. Thank you so much for the advice.